شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم جناب صابر قابلی والا صاحب، صدر گجرات مجلس اتحاد المسلمین، محترم جناب جعفر حسین میراد صاحب، رکن اسمبلی ریاست تلنگانہ مجلس اتحاد المسلمین، مجلس اتحاد المسلمین کے تمام معزز صدور و معتمدین و ذمہ داران و اراکین بلدیہ اور محبان مجلس اتحاد المسلمین، یہ پہلا اجلاس اسمبلی کے انتخابات کے بعد بلایا گیا ہے۔ گجرات کے اسمبلی انتخابات کے بعد میں سب سے پہلے آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تمام نے اپنی اپنی قابلیت اور اپنی اہلیت کے مطابق اس اسمبلی کے انتخابات میں مجلس کے امیدواروں کے لیے آپ نے محنت کی، جستجو کی، قربانیاں دی۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دوسری بات آپ سے یہ عرض کرنا ہے کہ آپ تمام لوگ جب اپنے اپنے مختلف اسمبلی کے ودھان سبھا اور اسمبلی حلقہ جات کو واپس جائیں گے، میری آپ سے ادباً گزارش ہے کہ آپ میرا شکریہ وہاں کی عوام کو بھی دیجئے جنہوں نے مجلس کے لیے محنت کی اور مجلس کے امیدواروں کے لیے انہوں نے اپنے ووٹ کا استعمال کیا۔ تیسری بات مجھے آپ سے یہ عرض کرنا ہے کہ یہ اسمبلی انتخابات کے نتیجے ہماری خواہش کے مطابق نہیں آئے، تو میرا ماننا یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ ہے اور مشیت الہی کے فیصلے کو ہم کو قبول کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ جو فیصلہ آیا ہے اس سے مایوس نہیں ہے، کیونکہ جمہوریت ہے اور عوام نے اپنا فیصلہ دیا ہے۔ ہم اس کو کھلے دل سے اس کو قبول بھی کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہم میں یقیناً کوئی کمزوریاں ہوئی ہوں گی، کوئی کمزوریاں ہیں ابھی بھی، ان کمزوریوں کو دور کرنا اب یہ آپ کی اور میری ذمہ داری رہے گی، اور میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ ان کمزوریوں کو یہاں پر بیان کروں۔ آپ تمام لوگ ذمہ دار ہیں، آپ زمین پر تھے اور آپ نے ان کمزوریوں کو دیکھا ہے۔ اب ہم کو اور آپ کو مل کر ان کمزوریوں کو دور کرنا ہے، اور جیسا کہ صابر بھائی نے کہا کہ وہ کمزوریاں تنظیمی طور پر بھی ہوں گی، آرگنائزیشن لیول پر بھی ہوں گی، ہم کو ان کمزوریوں کو دور کرنا ہے۔ کمزوری ہو سکتا ہے کہ آپسی تھوڑے بہت اختلافات بھی رہے ہوں گے، اس اختلافات کو بھی دور کرنا ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ ہم اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں گے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ ایک سیاسی پارٹی کے سیاسی سفر میں اسمبلی کے انتخابات ہوں یا کوئی بھی انتخابات کے نتیجے ہوں، ہم کو ان نتیجوں کا سامنا ہر سیاسی پارٹی کو کرنا پڑتا ہے۔ آج ہم کو کامیابی نہیں ملی، یقیناً تھوڑی بہت ہمارے دل میں رنجش ہوگی کہ بھئی ہم اتنے محنت کی، ہم کو کامیابی نہیں ملی، مگر یاد رکھیے کہ یہ حالات سے ہر ایک کو گزرنا پڑتا ہے۔ جب میں پہلی مرتبہ آج سے 28 سے 29 سال پہلے جب اپنا پہلا اسمبلی کا الیکشن کا ٹکٹ مجلس نے مجھے دیا تھا، تو اس وقت مجلس کے بہت سے اراکین اسمبلی حیدرآباد میں تھے، تو سوائے میرے تمام لوگوں کو، تمام امیدواروں کی کامیابی نہیں ملی۔ وہ اسمبلی کے انتخابات میں ان کو شکست ملی، ہار گئے تھے۔ میں واحد رکن اسمبلی منتخب ہوا تھا، تو الحمدللہ جو پہلی چیز میں نے اپنے مرحوم والد سے سیکھی تھی کہ جب میں اسمبلی کا الیکشن کا سرٹیفکیٹ لے کر، اس وقت اس زمانے میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین نہیں تھی، بیلٹ پیپر سے کاؤنٹنگ ہوتی تھی، تو بیلٹ پیپر کی کاؤنٹنگ 24 گھنٹے، کبھی 35 گھنٹے بھی چلتی تھی۔ خیر بہرحال میں رات میں بہت رات ہو گئی تھی،
मैं अपना सर्टिफिकेट लेकर जब अपने घर को गया और अपने वालिद मरहूम से मुलाकात की तो उन्होंने, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैं नया नया सियासत में था, मुझे इन तमाम हालात की बातें नहीं मालूम थी। आज भी मुझे थोड़ी बहुत बातें आती हैं, बहुत सी बातें समझ में नहीं आती। तो हमारे वालिद ने मुझसे कहा कि अभी तुम सो जाओ, आराम करो, सुबह में बात करते हैं। और जब सुबह हुई तो हम नमाज पढ़ के सो गए थे। तो 10:30-11 बजे मेरे वालिद ने मेरे कमरे के पास आकर कहा कि चलो अभी दारुस्सलाम जाने का है। तो मैं समझा नहीं, कि मैं समझा कि भाई ये आदमी है क्या है, अभी हम सब हार गए और ये दूसरे दिन सुबह मुझसे कह रहे हैं कि चलो अभी। तो आप अंदाज़ा नहीं कर सकते, जब हम दारुस्सलाम को गए हैदराबाद में तो क़रीब 10 से 15 दिन तक दारुस्सलाम में सिर्फ 3 लोग बैठते थे। एक मेरे मरहूम क़ायद, मेरे वालिद मरहूम, मैं और हमारे पास एक ऑफिस में काम करने वाले रज़ाक़ साहब। तो 15 दिन हम लोग अकेले बैठते थे। कोई लोग, बहुत से मजलिस के लोगों में मायूसी थी, गम था, मगर 15 दिन के बाद लोग आते गए। मुझसे हमारे मरहूम वालिद ने बड़ी मेहनत करवाई। मैंने आज जो कुछ भी मैं आज यहाँ पर आपके सामने खड़ा हूँ, ये अल्लाह सुब्हाना व तआला का बहुत बड़ा करम है। और अल्लाह ने अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में मुझे यहाँ तक लाया। और मेरे मरहूम वालिद की और मेरी माँ की दुआएं हैं कि मैं यहाँ तक आया हूँ। तो आप तमाम को सिर्फ यही बात आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा कि हिम्मत मत हारिए। अगर आप हिम्मत हार जाएंगे तो फिर आप ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकेंगे। और आप लोग माशाअल्लाह से अपनी अपनी ज़िंदगियों में बड़ी मेहनत करके आप लोगों ने अपना मुकाम पैदा किया है इनफरादी तौर पर। तो ये भी एक कड़ी है, हमको मेहनत करना है, हम अपने हौसलों को बुलंद रखेंगे और जो हमारी कमज़ोरियां हैं, तंजीमी कमज़ोरी होंगी, जो भी होंगी, हम उसको दूर करेंगे। और मैं भी आपसे वादा कर रहा हूं कि मैंने असम्बली के इंतखाबात के दौरान, चुनाव के दौरान, मैंने अवाम से वादा किया था, गुजरात की अवाम से वादा किया था कि मैं इलेक्शन का नतीजा चाहे कुछ भी आ जाए, मैं गुजरात को आता रहूँगा, इलेक्शन लड़ता रहूँगा, जिद्दोजहद करते रहेंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि अपने हौसलों को बुलंद रखिए और हम लोग इंशाअल्लाह ताला मिलकर फिर से अपनी पार्टी को और मजबूत करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कॉरपोरेटर गुजरात में हैं, हमारी पार्टी है, आप तमाम लोग हैं, तो हम लोग इसको लेकर आगे बढ़ेंगे। और जैसा कि साबिर भाई ने कहा कि आने वाले महीनों में यहाँ पर म्यूनसिपैलिटी के और पंचायत के भी असम्बली इंतखाबात होने जा रहे हैं। हम लोग उसमें भी मेहनत करेंगे, अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे और देखते देखते आप देखेंगे कि 5 साल ऐसे ही चले जाएंगे। शायद ये क़ुर्ब क़यामत की निशानियों में एक निशानी है कि वक्त तेज़ी से गुज़रता है। तो देखते देखते आप देखेंगे 5 साल ऐसे ही आ जाएंगे और आप बोलेंगे कि हाँ, कल ही हम बैठकर मुश्ताक साहब के इस फार्म हाउस में हम बैठकर असदुद्दीन ओवैसी ने हमसे कहा था कि हम लोग अपने जद्दोजहद को जारी रखेंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मेहनत करिए, अपने हौसलों को बुलंद रखिए। और मेरा मानना ये है कि इंसान की सोच में कभी शिकस्त पैदा नहीं होनी चाहिए। जिस दिन आपकी सोच में शिकस्त पैदा हो गई, फिर आप ज़िंदगी में कोई तरक्की नहीं कर सकते। जब तक अल्लाह आपको और हमको ज़िंदा रखेगा, हमको जिद्दोजहद करना है, स्ट्रगल करना है, मेहनत करना है, अपनी मंजिल मकसूद की तरफ हमको चलना है। और आपने देखा कि महाराष्ट्र में भी मजलिस के MLA हैं, इम्तियाज़ जलील MP हैं, बिहार का जिक्र भी जाफ़र हुसैन मेराज साहब ने किया है। मगर हम बिहार को भी नहीं छोड़े हैं, ना हम उत्तर प्रदेश में हमको कामयाबी नहीं मिली, ना हम उत्तर प्रदेश की ज़मीन को छोड़े हैं, ना छोड़ेंगे। हमको झारखंड में कामयाबी नहीं मिली, मगर हम आज भी झारखंड में अब एक बाई इलेक्शन होने जा रहा है, हम इलेक्शन लड़ेंगे। वैसे ही गुजरात में हम आए हैं, आप इस जमात को कामयाब करवाए हैं तो हम इस ज़मीन को नहीं छोड़ेंगे। और जो लोग ये समझ रहे हैं कि एक इलेक्शन के नतीजे की वजह से
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गुजरात की सरजमीन को छोड़कर जाएगी, मैं इन लोगों को भी पैगाम देना चाह रहा हूँ बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ कि आप इस तरह की खाम ख्याली को छोड़िए। हम जहाँ पर अपना झंडा लेकर उसको आते हैं, या तो हम कामयाबी हासिल करेंगे या फिर हम इस दुनिया से लड़ते हुए जाएंगे। ये मेरी ज़िंदगी का उसूल है। तो मेहनत करना, अल्लाह ने हमको काबिलियत दी है, अल्लाह ने हमको दिमाग दिया है, अल्लाह ने हमको इज़्ज़त दी है, दौलत दी है, मुकाम दिया है। मेहनत जस्तजू करना हमारे हाथ में है, नतीजा देना अल्लाह के हाथ में, अल्लाह का फ़ैसला है। मगर जब तक हम अपनी कमज़ोरियों को दूर नहीं करेंगे, अपनी गलतियों को नहीं सुधारेंगे, हमको कामयाबी नहीं मिल सकती। तो इसलिए सबसे पहले शुरुआत मुझसे होगी, फिर साबिर भाई से होगी, मजलिस के ज़िम्मेदारों से होगी, कॉरपोरेटर से होगी। हम तमाम को अपना अपना मुहासिबा करना है, इंट्रोस्पेक्शन करना है। ये हमको बैठ कर ये सोचना है कि कहाँ मुझसे गलती हुई है या कोई कमज़ोरी मुझ में थी। हम सबको मिलकर इज्तिमाई तौर पर कलेक्टिवली हमको मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह ज़रूर हमको कामयाबी मिलेगी। और ये बात जो मैं कह रहा था इलेक्शन के दौरान में, गुजरात की आवाम को मैं कह रहा था, आपसे कह रहा था कि हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है कि बीजेपी को रोकें, मगर लोग ऐसे हैं बाज़ जो अपने आप को बड़ा हीरो समझते हैं कि नहीं हम भाजपा को रोकेंगे। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि पहले आप अपने घर में चिराग को रोशन करो, बाद में मस्जिद में जाकर चिराग रोशन करो। मगर लोग ये समझते कि नहीं नहीं भाई, पास लोग हैं जो 50-55 साल की उनको ग़ुलामी की आदत है, तो कहते हैं नहीं नहीं हम करेंगे। देखिए, सियासत में ज़िंदा रहेंगे तो नेकी भी करेंगे, गुनाह भी करेंगे। अब जब सियासत में अगर आप आए हैं और आप बोलेंगे नहीं मैं मर जाऊंगा दूसरे को ज़िंदा रखूंगा, तो भाई साहब ये ज़िंदा रहने की लड़ाई है और हम ज़िंदा रहेंगे, ज़िंदा हैं, हम ज़िंदा रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। मगर वो लोग आज जो असेंबली के, गुजरात के असेंबली के इलेक्शन में जो बड़े बड़े फैसले लिए गए थे, जो बड़े बड़े ऐलानात किए थे, हमको भी गाली दिए, बहुत अच्छा है, मुबारक हो। मैं तो कहता हूँ कि और मुझे गाली दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मगर आज उनको ये बताना पड़ेगा गुजरात की आवाम को, ख़ास तौर से मुसलमानों को, दलितों को, कि बीजेपी क्यों जीत गई। हम तो 13 सीट लड़े थे। अब उनको बताना पड़ेगा जो मस्जिद के मिंबर रसूल पर बैठकर, जो खानखाहों में बैठकर, जो अपने चाहने वालों के दरमियान में बैठकर बड़े बड़े ऐलान किए थे, वो आप कैसे नाकाम साबित हुए। यही फैसले इनके बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाते हैं। ये बात उन लोगों को भी मैं बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज़ कर रहा हूं कि आप सोचो आप लोग क्या कर रहे हैं। ये आप जो बड़े बड़ी बातें करते हैं, जैसा 5 साल इलेक्शन आता है ये सब लोग खड़े हो जाते हैं कि नहीं 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 ऐसा हो। क्या हुआ बताइए, ये कैसे हुआ भाई? 22 साल काफ़ी नहीं थे, आपने और 5 साल इजाफा कर दिया उसमें। कम से कम आप हमारी आवाज़ को तो भिजाते थे गुजरात के असेंबली में। खैर, जैसा मैंने कहा, जो भी होता है कुदरत की तरफ से होता है और हम अपनी मेहनत को जारी रखेंगे। मैं किसी के ताल्लुक़ से कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ। मुझे आप तमाम पर भरोसा था, है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मेरी आपसे सिर्फ यही अपील है, गुजारिश है कि थोड़ा आप देख लो क्या गलती हुई, क्या आप में कमज़ोरी है और कैसे उसको दूर किया जाए। अगर आप उसी गलती को दोबारा करेंगे तो फिर जब मुझे कुछ बोलना पड़ेगा आपको। मगर ये आप पर मुनस्सिर है कि आप उस कमज़ोरियों को, जो गलती है बशमूल मेरे साबिर भाई की, हम सब मिलकर, इसमें हम सब मिले हुए हैं, मिलकर हैं इसमें। कोई ऐसा नहीं है कि इस शख्स की वजह से हुआ या उस महिला की वजह से हुआ, ऐसा नहीं है। सब में कुछ ना कुछ है। आप जानता हूँ क्या कमज़ोरी है, तो इसलिए हमको दूर करना। और इसीलिए मैंने ये फैसला लिया है साबिर भाई से बात करके कि हमारी पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा और अच्छा किया जाए। तो इसलिए हमने जो पार्टी के जो
वाइस प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी के जो पोस्ट थे, अब हम एक नए लोगों का इंतखाब किए हैं, नए लोगों को ज़िम्मेदारी देंगे। तो मिसाल उसके लिए हमने फ़ैसला ये लिया है कि हमारे शकील समा साहब जो कच्छ से, भूज से बेहतरीन असम्बली का इलेक्शन लड़े, बहुत मेहनत किए, शकील समा साहब को इंशाअल्लाह जनरल सेक्रेटरी बनाया जा रहा है और उनको यूथ की पार्टी की जिम्मेदारी दी जाएगी कि वो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी रहेंगे और यूथ मजलिस में नौजवानों को, युवाओं को मजलिस में लेकर आएंगे। और एडवोकेट हसन खां पठान को नायब सदर वाइस प्रेसिडेंट बनाया जा रहा है। हमारे सुलेमान पटेल भाई जो मंगरोल से इलेक्शन लड़े थे, अभी मैं उनसे मुलाकात करके आया हूँ। एक्सीडेंट में उनका पैर बहुत, उनको एक्सीडेंट हुआ, काफ़ी पैर में उनको दो ऑपरेशन हुए। और सुलेमान भाई जब जा रहे थे गाड़ी में तो वहाँ पर हमारे मजलिस के एक ज़िम्मेदार को कांग्रेस के गुंडों ने उनको मारा पीटा। तो जैसा सुलेमान भाई को मालूम हुआ, वो गाड़ी में तेज़ जा रहे थे तो एक्सीडेंट हुआ। अभी हम उनके घर पे मिल कर आए, अभी ऑपरेशन उनको हुआ है, वो नायब सदर रहेंगे। हनीफ हाजी खलंदर साहब को वाइस प्रेसिडेंट बनाया जा रहा है। अब्दुल बसीर शेख साहब को वाइस प्रेसिडेंट नायब सदर, हमारे कल्पेश सुंधिया साहब को वाइस प्रेसिडेंट, हरीत अंसारी को इंशाल्लाह जॉइंट सेक्रेटरी, एडवोकेट यूसुफ करूट साहब को जॉइंट सेक्रेटरी, नत्थू भाई पारमार साहब को जॉइंट सेक्रेटरी, वसीम कुरैशी जॉइंट सेक्रेटरी रहेंगे, बाबा खान बाबी साहब जॉइंट सेक्रेटरी, और स्पोक्स पर्सन में हमारे दानिश कुरैशी और एडवोकेट उवैस मलिक साहब रहेंगे। मेरी हमारे दानिश और एडवोकेट उवैस मलिक साहब से भी गुजारिश है कि जब टीवी चैनल पर जाना तो ज़बान को ज़बान के तौर पर इस्तेमाल करना, तोप की तरह इस्तेमाल नहीं करना। तो ये हमने फ़ैसला लिया है। इसके बाद इंशाअल्लाह ताला ज़िले लेवल पर प्रेसिडेंट बनाए जाएंगे और उसका भी अनकरीब में साबिर भाई ख़ुद इंशाअल्लाह ताला आप गुजरात में फिरेंगे। अब साबिर भाई आप जाएंगे हर जगह जाकर, रमज़ान से पहले जितना हो सके साबिर भाई थोड़ा फिरेंगे और वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बॉडी बनाएंगे, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाएंगे और भी बहुत से नामों का इसमें शामिल करना है। ऐसा नहीं है कि ये फाइनल लिस्ट है। इंशाअल्लाह ताला बहुत से ज़िम्मेदार लोग हैं, उनको ज़िम्मेदारी और भी दी जाएगी। तो ये एक फ़ैसला लिया गया है, मैं आपको इत्तला देने आया हूँ और इंशाअल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी कि कम से कम महीने में या 2 महीने में 1 से 2 मरतबे मैं गुजरात को आऊँगा। जैसा आज मैं आया हूँ, सुबह की फ़्लाइट से आया हूँ, आपसे मुलाकात किया हूँ और पार्टी का जो प्रोग्राम होगा, पार्टी की मजबूती के लिए हम काम करते रहेंगे। आप मुतमईन रहिए कि असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस के ज़िम्मेदारान मजलिस के इस कश्ती को तूफ़ान में छोड़कर कूद के भागने वालों का हमारा नाम नहीं है। तूफ़ानों से मुकाबला करना ये हमारे लिए बाइज़ फ़ख्र की बात है और हम तूफ़ानों से मुकाबला करते आए हैं और इंशाअल्लाह ताला ये तूफ़ान जो बातिल ताकतों के तूफ़ान हैं, हम इनसे मुकाबला करेंगे। हम मुत्तहिद थे, मुत्तहिद रहेंगे और अल्लाह की ज़ात पर पूरा तवक्कल करेंगे। और मैं फिर से आप तमाम कैंडिडेट्स का, आप तमाम ज़िम्मेदारान का, आप तमाम कॉरपोरेटर्स का, अराकीन बल्दिया का, मुहिबान मजलिस का दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मायूस मत होइए, अपनी जद्दोजहद को जारी रखिए और इसीलिए मैं 1 महीने के बाद आया हूँ ताकि थोड़ा आप लोगों भी थोड़ा फ्रेश हो जाएं और उसके बाद हम लोग ये इस कारवां को लेकर आगे बढ़ेंगे। और जब साबिर भाई इंशाअल्लाह ताला जब डिस्ट्रिक्ट बॉडी बनाएंगे तो आप तमाम लोगों से फ़र्दन बातचीत होगी, आपसे और भी आपकी जो तकालीफ़ हैं या जो कमज़ोरियाँ का आपने सामना किया है, उन तमाम तकालीफ़ को, कमज़ोरियों साबिर भाई तक पहुँचाइए, बयान करिए। और साबिर भाई से भी मैं अपील करूँगा कि वो उन तमाम शिकायतों को आराम से बैठकर सुने, क्योंकि जो मजलिस का सदर होता है उसको कम बोलना है, पार्टी के दरमियान में सुनना ज़्यादा है। और जब वो जनता में जाता है
تو وہ زیادہ بولتا ہے، مگر جب پارٹی کا جو صدر ہوتا ہے، جب اپنے پارٹی کے ذمہ داروں میں کوئی بیٹھتا ہے تو اس کو خاموش سننا پڑتا ہے کہ جو ان کی شکایت ہے، ان کی تکلیف ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ صابر بھائی ان تمام باتوں کو سنیں گے۔ ہم تمام کو اپنا اپنا ایک انٹراسپیکشن کرنا ہے، محاسبہ کرنا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ہم تمام لوگ صاحب عقل ہیں، اور ہم لوگ ان کمزوریوں کو دور کرتے ہوئے مجلس کے سیاسی کاروان کو، اس سفر کو آگے لے کر جائیں گے۔ آپ تمام کا بہت بہت شکریہ، آپ یہاں پر آئے، آپ اپنے علاقے میں، اپنے وارڈ میں، اپنے ودھان سبھا میں آپ واپس جائیں گے، آپ وہاں کی عوام کو میرا سلام پہنچائیے۔ جو باتیں میں نے آپ کے درمیان میں رکھی، ہو سکے تو ان تک بھی یہ بات بتائیے کہ ہم آتے تھے اور آتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین۔ ہیلو، ابھی آپ